Hello friends, welcome in Corporate World channel. Today's video is basically for CMA intermediate students. New syllabus 2016 cost accounting subject. Basically, number of messages, number of WhatsApp request received to me from student member to have a bird eye view vision for cost accounting subject particularly, which is very important subject for our CMA course at foundation level also, at intermediate level also, and in final also, and in your corporate world also. Because if you become CMA, then your core area will be costing, and therefore, what is important is to have thoroughly as well as practical experience of costing subject. Okay, total syllabus are trying to cover with this PPT. Total 100 marks paper will be there. Total syllabus or total paper is divided into three parts: Part A, Part B, Part C. Part A covers total marks of 40. In this Part A, cost assessment, that is element of cost, cost accounting standards, cost bookkeeping, major theoretic, theory subjects are covered or concepts are covered. Part B, total marks 30. In this part, methods of costing are covered. Total methods of costing are covered under Part B. Part C में देखते हैं total marks 30. Under this section, cost accounting techniques are covered. Very important cost accounting techniques in your career. Part A in detail, introduction to cost accounting 40 marks as I said. उसमें डेफिनेशन क्या रहेगी कॉस्ट अकाउंटिंग की, स्कोप क्या है कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर मीन्स क्या रहता है, कॉस्ट यूनिट मीन्स क्या रहता है. ये जो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट कंसेप्ट है ये आपको डे टू डे लाइफ में भी काम में आती है इन योर कॉस्टिंग फील्ड. कॉस्ट सेंटर मीन्स पर्सन और प्लेस. सपोज इफ आई understood what is the cost of my Bihar plant, what is the freight cost of my Maharashtra cost, then I will allot two cost center for Bihar one and for another is for Maharashtra. So these two will be become my cost center. Okay, cost unit. Cost unit means unit of measurement. You can say that means if your material is in kg, then kg will be your cost unit. If your material is in liter, then liter will be your cost unit. If your unit is in meter, then meter will be your cost unit. Element of cost. Element of cost includes material cost, labor cost, or other expenses. Combinedly, we call it as a prime cost. Classification of cost. Direct cost, indirect cost, sunk cost, many costs, basis on their nature, are covered. Introduction of cost accounting, as I said, definition, scope, cost center, element of cost, procurement of material. कब material लेने का, because element of cost में material will be at your first level because 60% of the cost will cover only material. So material का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. तो प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल कब लेने का, कब ऑर्डर देने की, कितना क्वांटिटी परचेस करने का, कब करने का, कितना इन्वेंटरी रखने का. इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टास्क. इन्वेंटरी कितना मेंटेन करने का, मिनिमम लेवल इज व्हाट, मैक्सिमम लेवल इज व्हाट, ये सब इसमें देखने का है. इन्वेंटरी अकाउंटिंग देखना पड़ता है, कितना इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे होता है, विच इज द बेस्ट मेथड, फीफो मेथड क्या होता है, वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है वैल्यूएशन के लिए. ये सब चीजें हम लोग को देखना पड़ता है. फिजिकल वेरिफिकेशन, इन्वेंटरी स्टॉक टेकिंग क्या रहता है, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी करना पड़ता है, कैसे वेरिफिकेशन करने का. ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस,
प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है तो लॉसेस होते हैं, तो लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसा रहता है, नॉर्मल लॉस रहा तो किधर चार्ज करने का, एबनॉर्मल लॉस रहा तो किधर चार्ज करने का, ये सब चीजें अपने को इधर देखनी चाहिए। एम्प्लॉय कॉस्ट इज अनदर कॉस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें टाइम कीपिंग क्या रहता है, टाइम बुकिंग क्या रहता है, पेरोल इज व्हाट, लेबर टर्नओवर रेशियो क्या रहते हैं, कितने एम्प्लॉय कंपनी में जुड़े, कितने एम्प्लॉय निकाले गए, कितने कंपनी जॉब छोड़ा, कितने एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ा, तो ये सब टर्नओवर रेशियो रहते हैं, एक इंडिकेशन रहते हैं कि लेबर टर्नओवर शो करने का। उसके बाद ओवर टाइम क्या कंसेप्ट है, ओवर टाइम में पेमेंट कैसा किया जाता है, एवरेज ये किया जाता है, एक्स्ट्रा दिया जाता है, ओवर टाइम क्यों करना पड़ता है, इज इट बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉय, इज इट बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉयर, वो सब देखने का। आइडल टाइम क्या रहता है, एम्प्लॉय रेडी है काम करने को लेकिन एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज नॉट एबल टू गिव देम जॉब, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई नहीं है, रॉ मटेरियल इशू है, कुछ अदर प्रॉब्लम्स है, तो आइडल टाइम कंसेप्ट आ जाता है। मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन मेथड दिए, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं। इंसेंटिव स्कीम क्या रहती है, हाउ यू कैन मोटिवेट योर एम्प्लॉय with the help of different kind of incentive schemes also cover in this topic. Direct expenses क्या रहते हैं, overheads means what, overheads means nothing but the all indirect expenses related to your process, is all called as overheads। स्पेशल overhead के साथ चार्ज करने का इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मोस्टली आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये सब इसमें आते हैं। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज बोलते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, टोटल 24 स्टैंडर्ड्स आज के दिन तक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प करते हैं कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन क्या ट्रीटमेंट करने की, तो ट्रीटमेंट यहाँ पे देखा जाता है। कॉस्ट बुक कीपिंग, फिर कॉस्टिंग के बुक्स कैसे मेंटेन करेंगे, कॉस्ट शीट क्या रहती है, कॉस्ट शीट इज नथिंग बट एज गुड एज जैसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, P&L बनाते हैं, वैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं प्रोडक्ट वाइज की, अगर पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है तो वेदर इट इज इन प्रॉफिट और इन लॉस, तो वो देखने के लिए हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट शीट अब हम लोगों को प्रैक्टिकल पेपर एग्जाम पेपर में आती है। नेक्स्ट, आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट एंड नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइटम्स, कुछ आइटम्स जो रहते हैं वो क्यों कॉस्ट शीट बनाते हैं एक्सक्लूड करने के, नॉर्मल और एबनॉर्मल आइटम्स क्या रहते हैं वो भी हम लोग को देखने पड़ते हैं। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विद फाइनेंशियल अकाउंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप लोगों को काम में आता है। एंड इफ यू नो दी कॉस्ट ऑडिट में भी एक शेड्यूल ऐसा रहता है जहाँ पे हम लोगों को रिको करना पड़ता है कॉस्ट अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग का विशेष फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ। सेकंड जो मैंने बोला था 30 मार्क्स के लिए, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, तो उसमें आता है जॉब कॉस्टिंग इज व्हाट, बैच कॉस्टिंग इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज व्हाट, प्रोसेस कॉस्टिंग इज व्हाट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज व्हाट। These are the methods depend on the your nature of business. If you are in the industry where each and every job is different, then job costing will be different. Batch costing will be different from the job costing. But in batch costing, similar items are produced. Let's say a small tab. So it is produced in number of quantity. So batch costing will be there. Contract costing is majorly or applicable in case of construction business. तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या रहती है, मेजर प्रोडक्ट रहते हैं, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस पे भी आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। प्रोसेस कॉस्टिंग जहाँ पे एक प्रोसेस का जो आउटपुट है बिकम्स इनपुट फॉर सेकेंड प्रोसेस एंड एंड सो ऑन, तो वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज की जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इसको सर्विस कॉस्टिंग भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर में ये मेथड यूज की जाती है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो वो पूछे जाते हैं, तो बेटर रहेगा आप अगर जिधर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो बिजनेस क्या है, उसका नेचर क्या है, तो कौन सा कॉस्टिंग का मेथड उधर एप्लीकेबल होगा, ये बात जानना इम्पोर्टेंट रहेगा स्टूडेंट के लिए। टेक्निक्स,
लास्ट 30 मार्क्स के लिए होता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। उसमें मेजर है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल जो कॉस्ट रहते हैं उस पर फोकस किया जाता है और फिक्स कॉस्ट जो रहते हैं उसको इग्नोर किया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स व्हाट कि what is your break-even point where there is no loss or no profit. So once you know the break-even point of your product, that is very easy to determine the decision making. Margin of safety. Margin of safety means how you are far from your break-even point. So MOS means higher the MOS, higher will be the margin. नेक्स्ट टेक्निक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वैरिएंस एनालिसिस। प्रैक्टिकल लाइफ में वैरिएंस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वैरिएंस एनालिसिस में मटेरियल वैरिएंस इज देयर, लेबर वैरिएंस इज देयर, ओवरहेड्स और वैरिएंस इज आल्सो देयर। नेक्स्ट इज बजट। बजट में देखा जाता है कि ईयर के पहले बजट लिया जाता है, फॉरकास्टिंग किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर में अपने एक्सपेंसेस कितने रहेंगे, नेक्स्ट ईयर में अपना सेल्स कैसे रहेगा, नेक्स्ट ईयर्स में अपने एक्सपेंसेस कैसे रहेंगे। तो ये भी एक प्रोफाइल का पार्ट है अपने कॉस्टिंग के कि बजट बनाने का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट आर देयर, फिक्स्ड बजट्स आर देयर, वेरिएबल बजट्स आर देयर। तो ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने को काम में आने वाला टॉपिक है। एग्जाम पेपर का अगर फॉर्मेट देखेंगे तो सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी 25 मार्क्स का रहता है आपके एग्जाम पेपर में। अगर लास्ट के पास क्वेश्चन पेपर देखोगे तो फर्स्ट उसमें रहता है कि चूज करेक्ट आंसर। उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं बेस्ड ऑन दी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम क्या है, 19 का सपोज 24 का, वैसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं या फिर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। करेक्ट। उसके बाद मैच दी कॉलम्स रहता है, ट्रू और फॉल्स रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि लास्ट के सजेस्टेड आंसर पढ़ो या फिर आपके सॉल्व स्कैनर देखो। सेक्शन बी जो रहेगा टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, आउट ऑफ विच वी हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चन। 15 5 75 और फर्स्ट क्वेश्चन 25 से 100 मार्क्स। तो इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से उस पर फोकस किया गया है। तो कॉस्ट शीट बनाओ, मिनिमम मैक्सिमम लेवल ढूंढो, उसके लिए फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट रहेंगे। बजट का रहेगा, कोई फिक्स बजट का फॉर्मूला यूज करके बजट बनाओ। ओवरहेड्स रहेंगे, ओवरहेड पे कैसे अलोकेशन करते हैं, ये सब सॉरी कॉस्ट शीट डबल होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने की संभावना। All the best friends. Please subscribe my YouTube channel for more